Ram Ram everyone. Welcome to Enthusiastic Spiritual Series. Let's welcome Shivkumar ji to give us a discourse on Bhagavad Gita based on Swami Ramanand teachings. Welcome Bhaiya and thank you all for joining us today. Shri Ram Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Ram Ram to all joining this session. We are at chapter number 5 of Srimad Bhagavad Gita, that is Karma Sannyas Yoga. Verse 5.01. It is Karma Brahmarpan Yoga. So Arjun watch. Sannyasam karmanam krishna punarjogam cha sansasi yatshaya et yorekam tanme bruhi sunishitam. Arjun asks that sannyasam karmanam krishna, sannyasam karmanam krishna, you are saying to get renunciated from work. कर्म से so you are saying sannyasam karmanam krishna punaryogam cha sansasi, and at other times you say that do the work as it is duty. So both the things you are saying, on one side you are saying that get renunciated from work, and other side you are saying that to get indulge in your duties. Yat shreyam etat et yorekam tanme bruhi sinishitam. Yat shreyam, whatever is more beneficial, yat shreyam etayoh ekam, in both of these, one is renunciation from work and other is getting indulged in work by surrendering its fruit to God. So whatever is beneficial in both of these, etayoh, in both of these, tat me bruhi, that tell me, bruhi, tell me to me, tat me bruhi, that means tell me to me, sunishchitam, conclusively tell me that which in either of these two is more beneficial. So literal meaning of this is, Arjun said, O Krishna, you praise renunciation of action and again yoga, karma yoga. Tell me for certain one which is better between these two. This is the fifth of Arjun's 16 question. Sri Krishna praised both the renunciation of work and work with devotion. So Sri Krishna praises both of these. So let us see one by one how Srimad Bhagavad Gita starts and how this question arises in mind of Arjuna. So Arjun is confused by these apparently equivocal instructions given by Lord Krishna. At one place, Lord Krishna praises that you do your work, you are Kshatriya, you should do your work. However, if it binds you, then whatever fruits are of it, it is to be ultimately handed over to me. So it is to be submitted to me. In this way, the karma will not bind you, the work will not bind you. And at other, the third chapter, Lord Krishna at end of it says that renunciation of work is better. So Arjun is confused that why both the things are simultaneously told by Lord Krishna to me. That's why this question is asked. The first chapter describes the nature of Arjun's grief and created the setting of Sri Krishna
to begin this spiritual Srimad Bhagavad Gita. So the first chapter is Arjun Vishad Yog. So our Swami ji also says, वह विषाद धन्य है जो प्रभु चरणों में स्थिर राग पैदा कर दे. वैसे तो हम हर बात पर रोते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा रोना, हमारा विषाद हमें प्रभु की ओर उन्मुख कर दे, that grief which ultimately turns over us to God, that is praisable. So that's why this first chapter is known as Arjun Vishad Yoga. हालात न बदलें तो इस बात पे रोना, बदलें तो बदलते हुए हालात पे रोना. हम रोते रहते हैं, लेकिन वे लोग धन्य हैं जो विषाद में भगवान की ओर चले जाएं. तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी. सो वी आर ऑलवेज वीपिंग. वी शुड एट सच मोमेंट्स वी शुड रिमाइंड अवर गॉड. हमें भगवान को याद करना चाहिए. जब हम पर दुख पड़ता है, मुसीबत पड़ता है, तो वो बंधन बहुत मजबूत होता है. जो हमारे दुख में आते हैं, जो हमारे यहाँ मरण पर आते हैं, हम उन्हें ज्यादा याद रखते हैं बनस्बत उसके जो हमारे यहाँ शादी में आते हैं, किसी बच्चे के पैदा होने पर. तो दुख में बना हुआ बंधन अधिक मजबूत होता है. That's why the first chapter is known as Arjun Vishad Yoga. At that time, Arjuna submits himself at the feet of Lord Krishna. Now, Sri Krishna revealed to Arjuna in second chapter and saying that it is the Sankhya Yoga, that is, soul is immortal, nobody dies, nobody lives, and soul is immortal. It is the body which dies or lives, so you should indulge in work. Now, it is foolish to lament. He then reminded Arjun that his karma as a warrior to fight for social duty, because you are kshatriya, your karma says that you should fight for as your social duty. So Lord Krishna at the end of second chapter, that is the second chapter is Sankhya Yoga, that is numeral knowledge, that is one is God and other is soul. So in this way it is the numerology, ये संख्या का विज्ञान है, इसीलिए इसे सांख्य योग कहा गया है. और उसी के अंत में कहते हैं कि कर्म तुम्हारा स्वधर्म है. द वर्क इज योर ड्यूटी एज ए क्षत्रिय, एज ए वॉरियर, सो यू शुड परफॉर्म योर सोशल ड्यूटी, अदरवाइज यू विल नाइदर गेट हायर अबोर्ड एंड नॉट द लोअर अबोर्ड. न तुम्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, न निम्न लोकों की. तो हमें अपने स्वधर्म में लगे रहना चाहिए. So, but Arjun says that since the karma binds, so it may trap us in this process of birth and death. So ये पुनर्जन्म के चक्कर में डाल देगा. Hence Lord Krishna says, in this case, whatever are the fruits, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू माते संगो अस्तु कर्मणि. तो ना तो तू कर्म के फल वाला हो और ना ही तेरी कर्म में आसक्ति हो. कर्मों को आसक्ति रहित होकर और उसके फल को भी आसक्ति रहित होकर ही तुझे करना है. सो लॉर्ड कृष्णा से सबमिट योर फ्रूट्स टू मी एंड कंटिन्यू टू डू योर वर्क. सम दुखे सुखे कृत्वा लाभ लाभ जय जयो ततो युध्याय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि. दुख और सुख में समान रूप से, लाभ हानि में समान रूप से, जय पराजय में समान रूप से रहते हुए तू कर्म कर. ऐसा करने से तू कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होगा. सो कंटिन्यूड दैट यू शुड डू वर्क. Lord Krishna emphasizes Arjun to do work by submitting its fruit to me. However, the fourth chapter has different scene. That Bhagwan Krishna says the person who is highly elevated, the spiritual person, has nothing to do. That is karma brahmarpana, havi brahmagna, brahmana hutam, everything. That here the things are said in this chapter, that how the yajna is performed, how the sacrifices are performed, and the person who is highly elevated has no need to do work. That person is completely absorbed in God. So what is the need of doing work? He
do not consider social duties as duties, because he is completely absorbed in God. So complete time devotion of him is to God only. That means it is the complete renunciation of work. So that is karma sannyas, that is renunciation of work. Now, here Arjun gets a doubt that at one times Lord Krishna says to get indulge in work as a duty, and other places says that renunciate work. So which is superior? Lord Krishna is equivocating both the facts, both the yogas. So now Krishna is confused that which is superior. भगवान कृष्ण दोनों ही बातों को बता रहे हैं कि कर्म तो करो और उसका फल मेरे अर्पित कर दो। और वहीं पर चौथे अध्याय में कहते हैं कि जो सन्यासी होता है बहुत ऊंची स्थिति में होता है, उसके लिए तो सांसारिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, वो पूरी तरीके से मेरे में रमा होता है, वो अपने नित्य कर्म करता है और किसी सामाजिक दायित्व को पूरी करने की उसका कोई बंधन नहीं होता। तो इसलिए अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया, भगवान इन दोनों में जो भी अधिक श्रेयकर हो उस एक को मुझसे कहो, आप तो दोनों ही बातें बता रहे हो। So in 4th chapter itself, Lord Krishna introduces the principle of karma sannyas, in which ritualistic duties and social obligations are renounced and one engages in devotional service. These instructions perplex Arjun. He thought that karma sannyas and karma yoga have opposite nature and it is not possible to perform both. अर्जुन यहाँ सोच रहा है कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों विपरीत प्रकार के हैं और इन दोनों को पाया नहीं जा सकता, एक साथ नहीं किया जा सकता। तो वो इस प्रश्न को भगवान के सामने उठाता है कि आप एक कहिए जो श्रेयकर हो, जो निश्चित हो, जो मेरे लिए फायदेमंद हो, आप इन दोनों में से एक की बात करिए। नाउ वर्स 5.02 श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयः सकरावुभौ। सो सकरौ उभौ संन्यासः कर्मयोगः च, सन्यासी जो कर्मों से संन्यास ले ले उसे सन्यासी कहते हैं। द पर्सन हु इज रिनंशिएटेड फ्रॉम वर्क, दैट इज सन्यासी। सो दैट पर्सन एंड कर्मयोगी हु इज इंडल्ज्ड इन वर्क, अदर काइंड ऑफ डिवोटी, दैट इज इंडल्ज्ड इन वर्क बाय सबमिटिंग इट्स fruits to God. So निःश्रेयः सकरौ उभौ, these both lead to supreme goal. One is the renunciator जिसने कर्मों का त्याग किया है और दूसरा जिसने कर्म के फलों का त्याग किया है। जिसने कर्म का त्याग किया है वह कर्म संन्यास योग है और जिसने कर्म के फलों का त्याग किया है वह कर्म योगी है। तो दोनों ही भगवान के उच्च लोकों की उच्च गतियों तक प्राप्त होते हैं। सो बोथ लीड टू सुप्रीम गोल। तयोः तु कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यासात्, कर्म के संन्यास से, अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है, इन दोनों में ही कर्म संन्यासात्, कर्म के संन्यास से कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योगी अधिक विशिष्य है। कर्म संन्यास से कर्म योगी अधिक विशिष्य है। कर्म का पूरी तरीके से त्याग दोनों ही भगवान को पाते हैं, लेकिन कर्म के संन्यास करने से अधिक श्रेयकर कर्म योग करना है, फलों का संन्यास करना है, कर्म का नहीं, ऐसा भगवान कहते हैं। What is the literal meaning of this? That is, the blessed Lord says that both renunciation of action and karma yoga lead to liberation. Between the two, karma yoga, however, excels over renunciation of actions. Now, in this verse, Shri Krishna compares karma sannyasi and karma yogi. It is a very deep verse, so let us understand it. Karma yogi is one
which does spiritual as well as social duty both. So we are the Karma Yogi. We all are Karma Yogi who are doing the practices as per our स्वामी जी डायरेक्टेड अस. सो स्वामी जी ने जैसा हमें कहा है कि कर्म तो करना है, करते कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना, और फल को भगवान के अर्पित कर जाना है, और सभी को भगवान का मानते हुए भगवान के परायण रहकर भगवान के नाते कर्म करना है. तो हम सब कर्म योगी की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी मार्ग पर चल रहे हैं. सो कर्म योग इज वन who does both spiritual and social duties. Karma yogi. Social duties are done with body while mind is attached to God. हम सभी सांसारिक कार्य तो शरीर से करते हैं और मन भगवान की ओर रखते हैं. कर्म संन्यास इज फॉर एलिवेटेड सोल्स, जो बहुत ऊंची स्थितियों में पहुंच गए हैं. अब उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है. जो उनके संसार के प्रति कर्म है, रिश्ते नातों के प्रति है, समाज के प्रति, ऐसे दायित्वों की करने की आवश्यकता नहीं होती है. सो दे राइजन बियॉन्ड द बॉडीली प्लेटफॉर्म. कर्म सन्यासी डिस्कार्ड सोशल ड्यूटीज and completely absorbed in God. That is the higher elevated soul, like Gautam Buddha, Mahavir Swami. Those are the elevated soul. They need not to perform work, and these are Chaitanya Mahaprabhu, completely absorbed in God. So they are now day and night remembering God. Those who practice karma sannyas do not consider to be the body. As a result, they are not obligated to discharge their bodily duties. So कर्म सन्यासी जो बहुत ऊंची स्थितियों को प्राप्त हो गया है, वो अपने आप को शरीर ही नहीं मानता और भगवान से एकाकार कर लेता है. ऐसी स्थिति में शरीर से के जो कर्तव्य कर्म हैं उनको करने के प्रति भी उसकी कोई चाह नहीं होती, या उनके प्रति वे अपना कोई दायित्व भी नहीं मानता. सो कर्म सन्यासी, दैट मीन्स दैट हैज रिनंशिएटेड द वर्ल्ड, is do not consider himself as a body. Hence Atman and Paramatman, the unification of soul to the super soul, is the only goal. So in this way that karma sannyasi does it. While karma yogi splits its time between the social duties and remembrance to God. So two types of duties are there. Then however, moreover, Lord Krishna says that karma yogi is better. Prima facie it looks that karma sannyasi is better, he is renunciating. But why Lord Krishna says that karma yogi is better? कर्म सन्यासी, कई बार हम लोग अब ऊंची स्थितियों में न पहुंचकर साधना की प्रारंभिक अवस्था में ही गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, और जैसे गेरुआ वस्त्र पहनकर संसार का त्याग कर देते हैं, क्योंकि संसार के कर्मों से हमें आलस्य की वजह से या और किसी प्रमाद की वजह से उनमें रुचि नहीं रहती और हम चाहते हैं कि गेरुए वस्त्र धारण कर लें, किंतु हम भगवान की ओर भी उन्मुख नहीं हो पाते. तो ऐसी स्थिति में हमारे पास लौटने का कोई मार्ग भी नहीं होता. हम ऊपर से तो गिरते हैं, हम स्पिरिचुअलिज्म की हाइट पे नहीं पहुंच पाते. वी डू नॉट अटेन द स्पिरिचुअलिज्म हाइट. हाउएवर वी cover ourselves with saffron cloths. So if we are not that elevated, then at that time when we fall, then there is no ground on which we have to fall. So उस व्यक्ति को जो स्पिरिचुअलिज्म भी नहीं कर पाया, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम. ऐसे में वो फिर कहीं गिर के भी नहीं आ पाता, क्योंकि उसके लिए कर्मयोग का भी मार्ग नहीं है. कर्मयोग के मार्ग में ट्रायल एंड एरर मेथड है कि जब हम करते हैं और कर्म का फल मिलता है तो उससे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं. फिर उसके बाद कई बार उससे श्रेष्ठकर होता है कि कर्मयोगी. एक होता है कि कर्म करते रहना और धीरे धीरे उसके फल से जो अच्छा मिले या बुरा मिले उससे सीखना, और दूसरा कर्मयोगी है, वो कर्म भी करता है और संस्कार भी नहीं बनने देता. वास्तव में उसे ही कर्मयोगी कहा गया है. बाकी तो सांसारिक प्राणी कर्म कर रहे हैं, फल के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्मयोगी वो है जो फल को भगवान पर अर्पित कर देता है. तो कर्मयोगी को क्यों श्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि दैट पर्सन
who is performing the social duty, on other hand submitting its fruit to feet of God, जो भगवान जो सांसारिक दायित्वों की पूर्ति करता है लेकिन उसके सुख और दुख से उसके होने वाले फल से खुद को नहीं बांधता, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भगवान को फल को समर्पित करते हुए ऐसा आगे बढ़ता चला जाता है, भगवान की कृपा उस पर रहती है क्योंकि वो उसके फल को समर्पित कर रहा है, तो वो धीरे धीरे स्वतः ही कर्म सन्यासी हो जाता है। वो मन से कर्मों के फलों का सन्यास ही कर्म का सन्यास है। शरीर क्या करता है, किसके दायित्व की पूर्ति करता है, इसका कोई महत्व नहीं है। असली सन्यास तो मन से कर्मों के सन्यास का है, तो वो कर्म सन्यास की भी के फल को भी प्राप्त करता है और कर्मयोगी के फल को भी प्राप्त करता है। वो भगवान की बनाई हुई इस प्रकृति में अपना योगदान भी दे रहा है और साथ ही साथ भगवान को फलों का, जो कि फल अधिक कीमती हैं, फल अधिक सूक्ष्म है, तो वो भगवान को उन कर्मों के फलों का दान दे रहा है या उनको अर्पण कर रहा है, इसलिए वो कर्म सन्यासी के फल को भी प्राप्त करता है। जबकि कर्म सन्यासी ने तो सांसारिक दायित्वों को भी छोड़ दिया और अपने अध्यात्म की निचली अवस्था के कारण वो भगवान को भी ना पा सका, और कई बार ऐसे सन्यासी तो चिलम फूकते हुए और प्रमाद की स्थिति में सोते हुए या चोरी करते हुए या ठगी करते हुए भी पाए जाते हैं। तो भगवान ने कहा ये जो कर्म सन्यास की अवस्था है वह स्वतः ही आगे चलकर प्राप्त हो जाती है। हम कर्म योगी से शुरुआत करें, सीधे सबसे ऊंचे पादान पर चढ़ने की कोशिश न करें, और बाहरी त्याग तो त्याग भी नहीं, आंतरिक त्याग अधिक महत्वपूर्ण। So the karma sannyasi can thus move much faster toward God, while the karma yogi are, that is, encumbered with social duties. We may prima facie think it so. However, in this verse, Sri Krishna extols karma yoga beyond karma sannyasi and recommends to the Arjun as preferred path. This is because karma sannyasi are exposed to a danger. If having renounced their duties, they cannot absorb their mind in God, this is the danger. Though they have renounced their duties, and if not absorbed in God, then what will happen? They are left neither here nor there. In India, there are tens of thousands of such sadhus who felt they are detached and they renounce the world. शुरू में लगता है कि संसार क्या है, कहीं से सुन लिया, चलो संसार छोड़ दो, बहुत आसान लगता है, छोड़ लो, सन्यासी बन जाओ, सर मुड़ा लो, that is shave your head and be sannyasi. But they initially leave this world, however, leave their duties, however, their mind are not yet attached to God. So consequently, they could not experience the divine bliss. मान लो बच्चे से हम खिलौने छीन लें तो उससे उस बच्चे में खिलौने की आसक्ति नहीं कम हो जाएगी, वो खिलौने के बारे में सोचेगा, देखेगा और काफी देर तक सोचता रहेगा। जबकि शनैः शनैः धीरे धीरे ऊंची अवस्था में वही जब बच्चा बड़ा होगा तो खिलौने की आसक्ति कम हो जाएगी, खेलते खेलते भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ऐसा भी उदाहरण देखा है। वन एग्जाम्पल इज दैट some lady became widow in childhood in 13 years of age. So early married, and in 13 years of age that widow become that girl child become widow and had gone to Vrindavan. But there was some titillation of laddu. बूंदी के लड्डू के बारे में उसकी बहुत आसक्ति थी। बचपन में एक दो बार खाया होगा, विधवा बनने के बाद उसे खाने को नहीं मिला क्योंकि सादा भोजन दिया जाता है, और अंत में वो वृंदावन चली गई। वृंदावन में वहां पर उसको एक जगह प्रसादम में, महाप्रसादम में लड्डू मिला, उसने उसको अपनी पोटली में डाल लिया ना। उसके मन में ये भाव था कि लड्डू खाना है, लड्डू खाना, जबकि वो सन्यासिनी हो गई थी। तो जब वो 80 वर्ष की अवस्था में मरी तो वो उस लड्डू को रोज एक बार चाटती थी कि उस लड्डू का प्रसाद मिले, वही उसकी पोटली में मिला। सो बाय लिविंग this is a Hindi movie which was shown in this TV. So I have seen in how we are getting attached to worldly pleasures. So by just leaving these things,
we cannot get detachment from it. However, giving our fruits of action to God, we certainly becomes yogi. On the other hand, karma yogi do both their worldly duties and spiritual practices. So if their mind turns away from spirituality, अगर मान लो कर्म योगी कब मन भगवान में नहीं लगा, जैसे सन्यासी का भी नहीं लगता है, ऐसी स्थिति में उसके पास कर्म का साधन तो होगा ही, वो ट्रायल एंड एरर मेथड से करेगा, फिर उससे सीखेगा, फल पाएगा, वो मार्ग तो रहता ही है। वो एक तरीके से निठल्ला नहीं बैठा रहता, उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता, जैसा कर्म सन्यासी का होता है कि एक बार जब कर्म छोड़ दिया और भगवान में भी मन लगा तो क्या करेगा। तो कर्म योगी अपने जीवन में विकास की धारा में लगातार आगे बढ़ता रहता है। That's why Lord Krishna says that karma yoga excels karma sannyas. Now, it is safer path for majority of people, while karma sannyas is only to be persuaded under the expert guidance of Guru. Verse number 5.03. श्रेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। श्रेया स नित्य सन्यासी, that नित्य सन्यासी. So श्रेया स नित्य सन्यासी, that sannyasi, that who has renunciated, who practice renunciation, that is considered superior person. Yo na dveshti na kankshati, who neither desire, na dveshti, neither hate nor desire. Nirdvando, who is free from duality, neither seeks this extreme nor seeks that extreme. Free from duality, resides in middle at equilibrium. That is superior. He Mahabaho, O mighty arm Arjun, that person is superior. Sukham bandhat pramuchyate, and that is free from the titillating effect of happiness, and ultimately that person is liberated. Let us see the English meaning and Hindi meaning of both of this verse. He who does not hate, does not crave, should be known as a man of constant renunciation. सन्यासी किसे कहा गया है? अब भगवान यहाँ बता रहे हैं सन्यासी किसे कहना चाहिए। वह जो न द्वेष करता है, ये न मिलना चाहिए, ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए, ये हमें अपने भगवान जो विधान देते हैं ये सब नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये सब दुख कारक हैं, तो वो आकांक्षित चीजों से, अवांछित चीजों से द्वेष नहीं करता है। न द्वेष्टि न कांक्षति, न जो वांछित है, जो सुख देने वाली हैं, जो शरीर को सुख देने वाली है, तो उनसे मन के अनुकूल है, शरीर के अनुकूल है, इंद्रियों के अनुकूल है, उनकी कामना भी नहीं करता। इंद्रियों के प्रतिकूल, मन के प्रतिकूल से द्वेष नहीं करता, मन के अनुकूल से चीजों से या विधान की कामना भी नहीं करता। निर्द्वंदो, जो द्वंद से रहित है, जो सुख और दुख को अलग अलग नहीं देखता, दो चीज नहीं करके देखता, जो जय और विजय को, लाभ और हानि को देखता तो है, समझता तो है, लेकिन दो करके नहीं समझता। निर्द्वंद, वो मध्य में स्थित है, और ये ऐसा ही देखता है जैसे कपड़े में धागा नीचे जाता है फिर ऊपर और इस तरीके से कपड़ा बन जाता है, तो वो देखता है कि भगवान का एक संतुलित विधान है, इन दोनों को ही आना होगा। निर्द्वंदो ही महाबाहो, हे महाबाहो, महान बाहु वाला अर्जुन, वह सुख के बंधन से मुक्त हो जाता है और वही कर्म सन्यासी है। जो निर्द्वंद है, जो द्वेष न करता है, किसी विधान से न कामना करता है, उसे ही सन्यासी मानना चाहिए। वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहता है और वो राजा जनक की तरह रहता है। जैसे कि that is a wood has gone to some artisan, some sculpture and said please modify me into a beautiful idol.
However, when artisan put a chisel on it and hammered, now it screamed, "Why you are doing so? And it hurts me a lot." Now, artisan says, "It is necessary to convert you into idol." तुमको एक देवी की मूर्ति के रूप में हम लकड़ी तुम्हें बनाना चाहते हैं, तो तुम पर छेनी हथौड़ी तो चलेगी ही, तो थोड़ा तो कष्ट होगा ही। Then that would said, "Okay, okay, let continue." तो फिर उस श्रमिक ने, उस मूर्तिकार ने, फिर बढ़ई ने थोड़ा थोड़ा और चलाया, तो वो चीखती तो रही, लेकिन कुछ ही दिनों में वो एक मूर्ति बन गई और उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी लोग पूजा करने लगे। उसी तरीके से हमारे जीवन में दोनों चीजें आवश्यक हैं। जैसे ग्रीष्म आवश्यक है, वैसे शीत भी आवश्यक है। कभी कभी उसमें रेगमाल से या घिसाई भी की जाती है, कभी वैक्स लगाया जाता है और चिकना भी किया जाता है। कुछ चीजें आरामदायक भी होंगी और कभी छेनी भी चलेगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही आवश्यक हैं, जिससे कि हम ऊंची श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके। सरल प्रश्न भी आएंगे, कठिन भी आएंगे। सिर्फ कठिन से भी हमारा विकास नहीं होता, कुछ सरल भी दिए जाते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो ऐसे में जो न द्वेष करता है, जो आ रहा है उसको भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। हर घटना माँ का मंगलमय विधान है। ये इस बात को, तो ये हमारे मूल मंत्र है अध्यात्म का। और किसी भी घटना के बारे में कंप्लेन करना, उस भगवान के विधान के बारे में कंप्लेन करना होता है। तो एक साधक इस बात के प्रति सचेत रहता है कि स्वीकार करे, तेरी रजा इरशाद हो, तेरी खुदाई के सामने शिकवा न कोई सवाल हो। वो शिकवा सवाल करता ही नहीं है। तो जैसे उस लकड़ी के भांति वो अपनी गढ़ाई को भगवान की कृपा समझता है, उनके हाथ में समझता है, और वो जानता है, इतना विश्वास रखता है कि वो अगर कुछ दे रहा है तो उसकी शक्ति दे रहा है और हमारे भले के लिए दे रहा है। तो हमारे विकास के लिए जैसे प्रश्न आते हैं, तो तेज बच्चा प्रश्न, कठिन प्रश्न पर भी खुश होता है, वो रोने वाला बच्चा नहीं होगा। यही एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले बालक की निशानी है कि वो अच्छे सवालों को, हार्ड क्रैकिंग क्वेश्चंस को भी बड़े अच्छे से लेता है, उत्साह के साथ लेता है। तो एक सजग साधक, दैट स्पिरिचुअल पर्सन हु इज vibrant takes all the odd situations and even situations equally, not prefers, neither prefers this nor prefers that. Whatever comes, he is equipoised, he is in equilibrium, वो साम्यावस्था में रहता है और दोनों ही परिस्थितियों में वो द्वंद नहीं करता, भेद नहीं करता, ये लाभ हुई, ये हानि हुई। उसका लाभ तो विकास के पथ पर अग्रसर होना है। सांसारिक क्षणिक लाभ और हानि के बारे में वो सोचकर क्या करेगा, वो तो लंबी यात्रा का पथिक है। ऐसे में वो क्षणिक कितने लाभ हानि पीछे चले जा चुके हैं, हमको तो जीवन का भी याद नहीं कि कौन कौन से जीवन में क्या हुआ। तो ये तो एक तरीके का क्लास दर क्लास एक हमारा आगे चढ़ने का क्रम है। तो वो छोटे मोटे लाभों को नहीं देखता है। वो अगर हरिद्वार की गाड़ी में बैठा है तो रास्ते की सीनरी को देखकर वो उतर नहीं जाता, जिससे कि अपने पथ से ही च्युत हो जाए। सो दैट पर्सन एक्सेल्स एंड दैट पर्सन इज द ओनली रिनंसिएटर। वही वास्तव में कर्मों का सन्यासी है, जिसने द्वंद से मुक्ति पा ली है, जिसने न द्वेष किया है, न किसी एक विधान की कामना की है। So कर्म योगी continue to discharge their worldly duties while internally practicing detachment. Internally detach होना चाहिए, जनक की तरह पल भर में राज कर लें, पल भर में छोड़ दें। So hence they accept both positive and negative outcomes with equanimity as the grace of God. The Lord has designed this world so beautifully that it makes us experience both happiness as well as distress for our gradual elevation. If we continue, जो एक राजा है वो ऊंचे से ऊंचा सुख भी पाता है, वहीं वो हार्श कंडीशन में भी है, जीवन में सैकड़ों युद्ध भी करता है और बर्छी, तीर, कृपाण सबके निशान भी उसके शरीर पर हैं। एक राजा के शरीर में कई अस्त्र शस्त्रों के निशान भी होते हैं, चोट भी होती है। तो वो दोनों एक्सट्रीमिटी से गुजरता है, तभी तो वो राजा बन पाता है। तो आप हमें बहुत अच्छे से अच्छे भगवान के श्री मिलेंगे,
भगवान की विभूतियां भी मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर हमारे जीवन में बड़े से बड़े कष्ट जो किसी को न मिले हों वो भी मिलेंगे। और ये जो दो विपरीत सिरे हैं जीवन के, उनकी हम अत्यंतानुभूति कर पाएंगे। और ये हमको, जो हमारी आत्मा है, उन दोनों में ही मध्य में निवास करेगी, हम निर्द्वंद होंगे। और ये भगवान की कृपा से होगा। हम उस कृपामयी माँ की गोद में ही विलास करते रहेंगे। बाहरी घटनाएं हमारे शरीर को तो प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन जो हमारी बुद्धि है, हमारे अंतस्थल है, वहां तक वे प्रभाव नहीं छोड़ती, तो शरीर भी निर्मल होता चला जाता है। तो इस तरीके से, as the grace of God, Lord has designed this world so beautifully that we experience both. World naturally pushes us towards gradual spiritual elevation. इस तरीके से हम naturally pushes, भगवान जहां वृक्ष इतना लहलहाता रहता है, वहीं उसके सबसे अच्छे फ्रूट्स बकरी खा लेती हैं। वहीं बकरी जो इतनी खुश रहती है, उसका पूरे का पूरा शरीर शेर खा जाता है। तो हमारे जीवन में अच्छे बुरे जो सेवा है, जो समष्टि में यज्ञ है, वो व्यष्टि में सेवा के रूप में फलित होती है। तो हमें इन दोनों ही घटनाओं को समग्र रूप से स्वीकार करना होगा। यही विशुद्ध समर्पण है। दैट इज आवर prostration, complete prostration to God. Our hearts are rough and unfinished because of the endless lifetime of attachment in the world. If we wish to become internally beautiful, we must be willing to tolerate pain as well, and let the world do its job of purifying us. So कर्म योगी, this वर्ल्ड, ये संसार एक प्लेटफॉर्म है, और ये एक बढ़ई की तरह है जो हम पर लगातार छेनी और हथौड़ी चला रहा है। ऐसे में हम जैसी मूर्तियों को या एक लकड़ी को ये आनंदित होना चाहिए कि भगवान कृपा करके हमको ऐसे प्लेटफॉर्म पर रखे हुए हैं जो अंततः हमें दिव्य कर देगा। और अगर हम अलाउ करेंगे ऐसा करने में, अंदर से मुदिता रखेंगे और हम धराशायी नहीं होंगे या अपने संकल्प को नहीं छोड़ेंगे, तो हम जल्दी ही उस श्रेष्ठता को और दिव्यता को प्राप्त कर लेंगे। सो कर्म योगी वर्क विद डिवोशन एंड इक्विपॉइज्ड इन द रिजल्ट एंड प्रैक्टिस अटैचिंग देयर माइंड टू गॉड। क्या जो हमारे जीवन में दुख की बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं, अब उनका कुछ भी अंश हमारे में शेष है, वो हम समय के साथ भूल जाते हैं। लेकिन उस समय हमारा जो नजरिया होता है, वो हमको विकास की सीढ़ी में कई पादान उछाल देता है। तो ऐसी स्थितियों में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम इस परिस्थिति में कितने अंक पा सकते हैं। हमारा नजरिया अच्छा होगा तो साधक उसी रुपए में 3 अठन्नी भंजार लेता है। तो इस तरीके से हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि किस परिस्थिति में हमारा नजरिया क्या है। परिस्थितियां महत्वपूर्ण नहीं है, परिस्थितियां तो सबके जीवन में आती रहती हैं। तो हमें हर परिस्थिति में ये देखना चाहिए कि हम साधक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यही तो दृष्टिकोण है, साधना और व्यवहार है। नाउ लेट मी रिसाइट अ भजन। श्री राम। भव भंवर में जीवन नाव फंसी, मन गहरे पैठ पुकार करो। माझी बन पतवार गहो गुरु, पार करो प्रभु पार करो। विषय वासना विषधर बन बन, विषय वासना विषधर बन बन, पल पल डसते तन मन प्राण। महामंत्र दे राम नाम, उपचार करो उपचार करो।
भव भंवर में जीवन नाव फंसी, मन गहरे पैठ पुकार करो। नहीं पास है विद्या बुद्धि, धर्म कर्म नहीं भक्ति शक्ति। धर्म कर्म नहीं भक्ति शक्ति। जैसा हूँ बस तेरा हूँ गुरु, जैसा हूँ बस तेरा हूँ गुरु। स्वीकार करो, स्वीकार करो। सत्यम शिवम सुंदरम गुरुजी, सतचित ज्ञान के आगर हो तुम। सतचित ज्ञान के आगर हो तुम। प्रेम की ज्योति जगा मन जगमग, प्रेम की ज्योति जगा मन जगमग। उजियार करो, उजियार करो। भव भंवर में जीवन नाव फंसी, मन गहरे पैठ पुकार करो। राम नाम की लय ध्वनि गूंजे, राम नाम की लय ध्वनि गूंजे। मन मृदंग के तालों में ले प्रसाद गुरु माथे टेको, ले प्रसाद गुरु माथे टेको। जयकार करो, जयकार करो। भव भंवर में जीवन नाव फंसी, मन गहरे पैठ पुकार करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द। नतमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में हैं। अपने चरणों की भक्ति दो। श्री राम। राम राम से बहुत अच्छा। राम 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 करण स्पर्श। राम श्री राम 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 राम। राम राम का अंतर बताया। राम राम मोदी जी। राम राम। आवाज नहीं आ रही मम्मी आपकी ठीक से। हाँ। राम 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 प्रिया बहन। राम राम जी। राम राम बहुत गीता। ही सुंदर तरीके से कुमार आपने बताया संन्यास योग और कर्म योग, बड़े उदाहरण देकर समझाया। बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। कर्म योग करते रहेंगे तो संन्यास योग अपने आप हो जाएगा। हाँ। कितनी सुंदर और महत्वपूर्ण बात है। शॉर्ट नोट्स, आप जो टीचर है ना तो वो शॉर्ट नोट्स ही बताते हो, तो वो बड़े महत्वपूर्ण है। अनसॉल्व पेपर हल हो जाता है।
एग्जाम में अनसॉल्व मिल जाए, शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं तो वो वही पढ़ लो तो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो वो आपकी वाणी में वो शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, बहुत लाभ मिलता है। बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। संन्यास में ही नोट में संकल्प योग में ही संन्यास सूत्र मिलते हैं, बताया सूत्र। हुआ है। बहुत हाँ। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर भैया। दीदी चरण स्पर्श। और आप विद्यार्थी दीदी के हैं और फिर और आगे पब्लिक को आप दिए जा रहे हो, तो समझ लो कि पूंजी पे पूंजी आप इकट्ठी करते जा रहे हो। पूंजी मिली हुई है दीदी के हाँ। द्वारा, वो पूंजी आप और विस्तृत कर रहे हैं तो और लाभ ही लाभ मिल रहा है। कहते नहीं है जब दो थोड़ा सा तो बहुत गुना मिलता है, तो वो आपको वही मिल रहा है बस। शिव कुमार बहुत आगे है, शिव कुमार हम तो बहुत पीछे। स्रोत तो आप ही है ना, स्रोत का तो फर्क पड़ता ही है ना, स्रोत तो आप ही है, सब कुछ मिला हुआ है। ये पीछे हैं तभी तो हम इनके आगे आगे हैं, हमारे पीछे इन्हीं का तो हाथ है। सही बात है। नहीं, प्रकट दिखता है, दिखता है भाई। और हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं, अपने आप मंजिल मिल रही है, मिलती जाएगी। गुरुदेव हताश नहीं होना है, आगे बढ़ना है, हताश नहीं होना है ना। चलिए, राम राम। सिंह जी का राम राम। राम 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 राम। सभी राम लोगों राम को राम राम। जी, राम राम। आपके प्रवचन जो होते हैं, अनुभूत जो है होते हैं, वहीं पे एक तो बोलते ज्ञान हैं के भैया। होते हैं, एक अनुभूति होते हैं। तो आपके जो है अनुभूति तो होते हैं, जैसे स्वामी जी बोलते थे उस टाइप से अंदर से स्वयं प्रकट होते हैं। हाँ जरूर, बिल्कुल। ये कृपा है भगवान स्वामी जी की। कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई, कभी होगी होगी, जो है जरूर होगी। हरिद्वार में, हाँ। आपके वैसे दर्शन तो हो जाते हैं। ये आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आवाज कहाँ से आती है? स्वामी जी की कृपा रहे, बस यही है। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम आपकी सबको। हेलो। हाँ जी। okay, thank you to joining this session and welcome for the next session. Ram Ram. Thank you, राम, everyone. सबको राम Thank you, राम। Bhaiya. Thank you. राम।